Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. This is the class for 8th. Our subject is English, and in today's video we will be discussing your civics chapter 1, which is the Indian Constitution. बेटा इस चैप्टर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है that what is constitution, why there is a need of constitution, why a democratic country needs a constitution, what are the major features of the constitution, what is the difference between our country's constitution, how is our country's constitution, what is federalism, what is the separation of powers or division of powers. And today we will be discussing the remaining topics of your this chapter. But before starting the class, let me ask all of you that how are you all? I hope that all of you must be fine and must be safe at your home and must be liking these online sessions, doing all your assignments using sanitizer and mask. So let us begin our class, but before that, take out your book and keep a pencil in your hand so that you could get a better understanding what we are actually talking about. So this was the enough introduction of the chapter and enough talking to you. Now let us begin our chapter now. So today firstly we will be discussing about the fundamental rights, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है बेटा मौलिक अधिकार. जो rights हमें मिले हैं, this rights can only be enjoyed in a democratic country, not in a monarchy country or not in a country which is governed by a king. Okay, now what is democracy? I have already told you, it is for people, by the people, of the people. Okay, that is democracy, where there is no king, we are choosing our representatives and finally they are making the government, and it is up to us that which kind of government we want, and we can change the government from time to time. So if we talk about the fundamental rights, the section on fundamental rights has often referred to as the conscience of the Indian Constitution. क्या कहा जाता है बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसे कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स को. It means that it is the heart, or you can say it is the soul of the Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists that they want to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of the state power in independent India. Colonial rule has created a certain suspicion. Now, before we got independent, we were under the rule of Britishers, right? Yes, and this rule had created a certain suspicion on the state in the minds of the nationalists, and they want to ensure. और क्या हुआ हमारे माइंड में जो एक सस्पिशन आया, तब हमने ये चीज़ जानी दैट वी नीड अ सेट ऑफ रूल्स. हमें एक रूल्स का सेट चाहिए जिसके बेसिस पर हमारी कंट्री चल सके, जो हमारे राइट्स को सेफगार्ड कर सके और किसी भी स्टेट को ये पार ना दे कि वो हमें एक्सप्लॉइट कर सके या हमारा हनन कर सके. किसी के पास इतनी पावर ना हो कि वो हमारे राइट्स को हमसे छीन सके. ओके, आई होप यू गॉट इट. यस, फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्री. ठीक है, तो द फंडामेंटल राइट्स विच इज़ द कॉन्सेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोटेक्ट सिटीज़न अगेंस्ट द आर्बिट्री. क्या होता है ये? सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है, सिटीजन्स का, हम नागरिकों का बचाव करती है. किसके खिलाफ बेटा? शोषण के खिलाफ, आर्बिट्री के खिलाफ, शोषण के खिलाफ. आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपको ये धर्म ही मानना होगा, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप स्कूल नहीं जाएंगे, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आपको यहीं पर रहना है. यू आर इंडिपेंडेंट, यू कैन डू वट एवर यू कैन डू. बट अभी आप लोग बच्चे हैं, नाउ राइट नाउ यू आर किड्स, सो बी अंडर द, यू कैन से द लव एंड केयर ऑफ योर पेरेंट्स. बट व्हेन यू विल बी 18+, अभी भी आपके पास सारे राइट्स हैं, बट अभी आप छोटे, अभी आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे. बट जब आप बड़े हो जाएंगे, आप ये चीज़ें जानेंगे कि किस तरीके की फ्रीडम्स हमें इस कंट्री में गिवन है. Okay, yes, yeah, an absolute exercise of power by the state. So क्या होता है कि ये एक तो हमें शोषण के खिलाफ बचा सकती है बेटा, और एक ये हमें बचा सकती है कि अगर कोई स्टेट अपनी पावर का हम पे गलत इस्तेमाल कर रहा है,
तो हम उससे बच सकते हैं बाय टेकिंग हेल्प ऑफ आवर राइट्स. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन दस guarantees द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट. ओके, इट गिव्स द गारंटी. ये जो फंडामेंटल राइट्स है बेटा, ये एक एक सिटीजन को, हर एक सिटीजन को ये गारंटी देते हैं कि वो स्टेट के अगेंस्ट भी फाइट कर सकता है एज वेल एज अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑल्सो. अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक अकेला इंसान स्टेट के अगेंस्ट कैसे फाइट करेगा, बट आप अगर देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जानेंगे जब आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में, देन यू विल गेट टू नो कि एक इंडिविजुअल भी स्टेट के अगेंस्ट फाइट कर सकता है. इफ स्टेट हैज़ यूज्ड और misused the power over him, he can file a case against that state. Okay, I hope you got it till here and I have explained everything to you very much clearly. Okay, the constitution thus guarantees the right of individual against the state as well as against other individual. Okay, I hope you got it. Now let's move forward. Moreover, the various minority communities also express the need of constitution to include rights that would protect their groups. Now, if you remember, I have told you about what is majority and what is minority. जो एक ग्रुप में बंधे लोग होते हैं, जो कि बड़ी संख्या में या आप कह सकते हैं ज़्यादा संख्या में होते हैं, उसे हम कहते हैं majority. और जो उस ग्रुप से छिन्न भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, जो कि संख्या में कम होते हैं, एज़ कम्पेयर टू देम दे आर कॉल्ड माइनॉरिटी. ओके, सो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय माइनॉरिटीज़ ने अपने ये व्यूज़ एक्सप्रेस किए कि हमें भी क्या चाहिए, राइट्स चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. क्यों उन्हें राइट्स चाहिए? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मेजॉरिटी उनका एक्सप्लॉयटेशन करेगी, आर्बिट्री होगी उनके ऊपर, एंड देयर विल बी अ एब्सोल्यूट पावर ओवर देम. सो दे रिक्वेस्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप्स. आई होप यू गॉट इट टिल हियर. The Constitution therefore also guarantees the rights of minorities against the majority. Therefore, the Constitution gives minority a chance against the majority and gives minority a right against the majority. Okay, students? Yes. So, I hope you understood it till here. Yeah. So, the Constitution include rights that would protect their groups. सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट देता है कि हाँ आप अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द मेजॉरिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटीज. एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू फोल्ड. कैसा ऑब्जेक्टिव है हमारे फंडामेंटल राइट्स का? दैट इज़ टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव, वन फोल्डेड नहीं है. दोनों साइड्स को इंक्लूड किया गया है. हर प्रांत के, हर रिलीजन के, हर कास्ट के, आप कह सकते हैं हर इंसान की मेंटालिटी को, उसकी नीड्स को इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है. ऐसा कह रहे हैं हमारे डॉक्टर डी.आर. अम्बेडकर, और यू कैन से बी.आर. अम्बेडकर. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन द पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स. पहली आपको गारंटी ये दी गई है, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जब तक इंसान या नागरिक अपने राइट्स के बारे में नहीं जानेगा, वो उसका यूज़ कैसे करेगा. सो सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. तभी जाके उसे पता होगा कि उसके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसके राइट्स के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो ही वो जाके उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकेगा. लेकिन अगर उस इंडिविजुअल को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई राइट उसके पास है, तो वो कैसे उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन ले सकेगा. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ओके, या. And secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. और क्या है, ये जो हमें पावर मिली है कि हम एक इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट या एक स्टेट के अगेंस्ट या एक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं अगर हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है,
तो इसमें सभी तरीके के इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन को इससे आगे रख सकते हैं, इससे दूर रख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है। ओके, आई होप यू गॉट इट टिल हियर। यस, ओके। दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। ओके, हर अथॉरिटी जिसके पास की पावर है उसके ऊपर भी ये चीज़ लागू होगी। In addition to the fundamental right, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy, जिसे कि क्या कहते हैं बेटा, DPSP. In a short, you can say a word, we can say that DPSP, which is Directive Principles of State Policy. Fundamental rights के साथ भी हमें DPSP दिए गए हैं. Okay, yeah. In addition to the fundamental rights, yeah. This section was designed by the member of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms. ओके, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं DPSP, जो कि क्या इंश्योर करेंगे, ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ग्रेटर सोशल जिस तरीके से लोग सामाजिक तौर पे जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, उसी तरीके से ये असेंबली जो है इसने इंश्योर किया है, एक गाइडलाइन बनाई है, हमारे लिए DPSP बनाई है, जिसको कि फॉलो हमारी कंट्री को और हमें करना होगा। And to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies. Okay, जो कि एक एज अ गाइड है, जो कि आपको क्या बताएगी, आपको दिशा निर्देश देगी कि किस तरीके से इंडियन स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, लॉज, पॉलिसीज, इन सबको किस तरीके से बनाना चाहिए। ओके, आई थिंक द लास्ट लाइन इज नॉट इंक्लूडेड, बट the whole you can say in a nutshell we have read that why fundamental rights are there and how useful these fundamental rights are. Okay, now let's move forward toward the next section. These are the fundamental rights जो आपके लिए बेटा जानना बहुत ज़रूरी है। Okay, so the first right is right to equality, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है बेटा समानता का अधिकार। क्या कहते हैं इसे, समानता का अधिकार। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ओके, ऑल द पर्सन्स, जो भी पर्सन है वो इक्वल है बिफोर द लॉ। आप कह सकते हैं कि वो न्याय के सामने बिल्कुल इक्वल है। न्याय जब भी होगा वो सब इक्वल है या सभी इंसान इक्वल हैं। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शेल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, जो कि ये कहता है कि हर इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन से या कंट्री में प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को। ये है राइट टू इक्वालिटी। आप किसी को इनइक्वल नहीं मान सकते, आप किसी के साथ असमानता नहीं कर सकते, आप किसी को लिंग के आधार पर और आप उसको धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर ये नहीं कह सकते कि वो आपसे निचला है या वो आप उसके साथ जो है असमानता कर रहे हैं। It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. क्या कहा गया है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, आपके धर्म के आधार पर कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, आपका शोषण नहीं कर सकता है, आपको असमानता नहीं दिला सकता। ठीक है, सबके पास समानता है, कोई भी आपसे असमान व्यवहार नहीं कर सकता। ये क्या कहता है बेटा, हमारे फंडामेंटल राइट का पहला राइट, विच इज़ राइट टू इक्वालिटी। ईच एंड एवरी लाइन इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू. Keep this thing in your mind, okay, that each and every line of these fundamental rights is, you can say, the key to success if you really know. Okay, every person has access to all the public places including playground, hotels, shops, etc. क्या कहा गया है कि हर इंसान को जो इस कंट्री का पार्ट है उसे पब्लिक प्लेसेस, चाहे वो किसी भी तरीके का प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप्स हो, उसी वहाँ जाने का पूरा पूरा अधिकार है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी को रोके कि वो पब्लिक प्लेस पे न जा पाए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी आधार पर आप असमान व्यवहार नहीं कर सकते।
द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जहाँ तक बात रही बेटा रोज़गार की, जॉब्स की, तो स्टेट भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, असमानता नहीं कर सकता कि मैं इस कास्ट के लोगों को ज़्यादा जॉब्स दे दूंगा, या जो अमीर वर्ग है उन्हें ज़्यादा जॉब्स दे दूंगा, या जो गरीब वर्ग है उसे ज़्यादा जॉब्स दे दूंगा। As I have discussed in the previous class also, that there is a complete process, there is a type of written exam, after that there is interviews, and different exams have different patterns। तो ऐसे नहीं है कि आप अमीर हैं, आपने 1 करोड़ रुपए दिए तो आपकी जॉब लग गई, कहीं कहीं ऐसा होता होगा, बट इफ़ वी टॉक अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है कोई भी किसी के भी साथ। But there are expectations to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished. Now अगर हम बात करते हैं बेटा untouchability की, जिसे कि क्या कहा जाता है, छुआछूत कहा जाता है, उस प्रैक्टिस को भी हमारे देश में हटा दिया गया है। ठीक है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को भी बेटा हमारे देश में ख़त्म कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। अब अगर कोई आपको छुआछूत या आपको छूता नहीं है, या आपसे ऐसा कहता है कि हम आपको छू नहीं सकते, किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी आपके साथ हो रही है, तो दैट इज़ अ क्राइम। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द राइट टू फ्रीडम, जिसे कि कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। This includes the right to freedom of speech and expression, the right to form association, the right to move freely, reside in any part of the country। ये क्या कहता है बेटा, इसमें right to freedom में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपकी स्पीच का, आप किसी भी तरीके से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, आप अपने विचार किसी के भी सामने रख सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आपके मन में जो बात है, जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। ओके, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप किसी भी तरीके से का संगठन बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप लोगों को जोड़ सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीली मूव कर सकते हैं आप, कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हैं। आप चाहें तो आप चंडीगढ़ में भी रह सकते हैं, आप चाहे तो आप शिमला में भी रह सकते हैं, आप चाहे तो आप केरल में भी रह सकते हैं, आप चाहें तो आप पंजाब में भी रह सकते हैं, अगर आप चाहे आप दिल्ली रह सकते हैं, आप चाहे आप हरियाणा रह सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ रह सकते हैं। ओके, एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, और किसी भी तरीके का व्यवसाय आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके की जॉब आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके का काम आप कर सकते हैं अपने लिए पैसा कमाने के लिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम। नाउ व्हाट यू गेट टू नो हियर इज़ दैट फ्रीडम वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि फ्रीडम वर्ड ही हमें एक्चुअली एक्सप्रेस करता है। ओके, अगर ये सब फ्रीडम नहीं होंगी, हमें बोलने की, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं होगी। जिस तरीके से आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, या क्रिटिसिज्म हम किसी का भी कर सकते हैं, तो हमें हक है कि हम अपनी बात कह सकें, और ये राइट्स हमें कहाँ मिले, हमारे देश से मिले हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ योर थर्ड राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नाउ व्हाट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। बेटा ह्यूमन मतलब इंसान, ट्रैफिकिंग मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक जो होता है, या जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर देते हैं, हम बेच देते हैं। क्या होता है बेटा, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, किसी भी तरीके के इंसान को किडनैप करके गलत तरीके के व्यवसायों में, गलत तरीके के यू कैन से ऑक्यूपेशंस में उनका यूज़ किया जाता है। कई बार बच्चों को किडनैप करके उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, और उन्हें भीख मांगने के लिए सिग्नल पे छोड़ दिया जाता है। एंड सो मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर, वी कैन नॉट इवन डिस्कस दैम। दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप क्या कर रहे हैं, आप इंसान को जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और आप उससे बेच रहे हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें बेटा इंक्लूड होंगी आपकी किस में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। फोर्स्ड लेबर, आप किसी से बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, किसी से आप ज़बरदस्ती मजदूरी करवा रहे हैं, उन्हें उससे पैसा कम दे रहे हैं उस बच्चे को, और आप उससे ज़बरदस्ती क्या करवा रहे हैं बेटा, मजदूरी करवा रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
and employment of children under 14 years of age. This you all know. RTE में कहा गया है कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी और दी जाती है, और कहा गया है कि आप 14 साल से कम एज के बच्चों को आप अपने साथ व्यवसाय में या काम करने में नहीं लगा सकते। किसी भी तरीके का काम आप उनसे, इंडस्ट्रियल वर्क आप उनसे नहीं करवा सकते, बिकॉज दे आर सो स्मॉल। वो छोटे हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड, देयर बॉडी इज़ नॉट सो केपेबल, और उनकी बॉडी ये सब चीज़ें अडाप्ट नहीं कर पाती हैं। फैक्ट्रीज जो कि बिल्कुल बंद होती है, जहाँ वेंटिलेशन में नहीं होता है, फॉर एग्जांपल चूड़ी की फैक्ट्रियाँ, या आप कह सकते हैं कि पटाखों की फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी फैक्ट्रीज में छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है। वाई? बिकॉज देयर पेरेंट्स आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, सो वॉट दे आर डूइंग, दे आर आस्किंग देयर चिल्ड्रन टू गो एंड वर्क, और चिल्ड्रंस को पता ही नहीं है उन्हें क्या करना है, सो दे आर गोइंग। कुछ मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द नो वेंटिलेशन, इतने घंटे काम उन्हें करना पड़ता है। So all these things are you can say included in this right against exploitation. I think I have discussed enough with you. Okay, now we will discuss about the right to freedom of religion. ठीक है, इसे कहते हैं बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक मतलब जो धर्म से जुड़ी है। रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन। तो ये जो रिलीजियस फ्रीडम है, या जो फ्रीडम रिलीजन के बेसिस पर है, धर्म के बेसिस पर जो स्वतंत्रता है, धार्मिक जो स्वतंत्रता है, वो हर इंसान को मिली है, हर सिटीज़न को मिली है जो हमारी कंट्री का पार्ट है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, all the religious groups, all the people, all each and every individual is having this a right to freedom of religion. किसी भी तरीके के आप धर्म से जुड़ सकते हो। ओके, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। आप अगर हिंदू हैं, आप अगर क्रिश्चियन बनना चाहते, यू कैन डू दैट। इफ़ यू आर क्रिश्चियन, यू वांट टू टर्न योर सेल्फ इनटू एन अनदर रिलीजन, यू कैन डू दैट। किसी भी तरीके का धर्म आप मानिए, किसी भी भगवान की पूजा कीजिए, कहीं भी आप जाइए, किसी भी तरीके की आप धर्म परिवर्तन कीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। सो दिस इज़ योर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एंड आपकी बुक में बेटा बिल्कुल इन अ नटशेल ये सब चीज़ें गिवन है। if when you will come in the bigger class, you will read that so many points are also included into it. Okay, yes. Now the fifth is cultural and educational rights. Okay, cultural and educational rights, जिसके अंदर की कल्चर और शिक्षा की बात की गई है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल द माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। क्या कहा गया है कि बेटा कोई भी माइनॉरिटीज़ जो कि संख्या में कम है, कोई भी रिलीजियस ग्रुप, कोई भी धार्मिक ग्रुप, कोई भी कास्ट, कोई भी लैंग्वेज के लोग अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। किस लिए? ताकि वो अपना कल्चर प्रिजर्व कर सके, उसे आगे बढ़ा सके, और क्या कर सके, उसे हमेशा के लिए संजो के रख सके। तो आपके पास ये अधिकार है कि आप अगर किसी भी तरीके का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हो तो आप खोल सकते हो, चाहे वो किसी भी आप धर्म से जुड़े हो, किसी भी आप समाज से जुड़े हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल, you can say the right to constitutional remedies. It is the most important fundamental right. Right to constitutional remedies, this allows citizens to move to the court if they believe that any of their fundamental rights has been violated by the state. ये क्या करता है बेटा, ये हमें शो करता है कि अगर किसी भी तरीके से, अगर आपका कोई भी अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, किसी भी तरीके से अगर आपके साथ कोई असमानता हुई है, कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, किसी अधिकार का अगर आपका हनन हुआ है, किसी ने अगर आपको किसी भी तरीके से आपका अधिकार आपसे छीना है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। यू कैन फाइल अ केस, यू कैन गो टू द कोर्ट कि मेरा इस तरीके से इस राइट का हनन हुआ है, सो कोर्ट विल टेक डिसीजन ऑन दैट। ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर फॉर टुडे एंड दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको सभी राइट्स तो दे दिए, पर एक वो राइट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जो कि इन सब राइट्स को सेफगार्ड कर सके, जो कि इन सब राइट को प्रिजर्व कर सके,
जो कि आपको बचा सके अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपका कोई भी अधिकार आपसे छीना जा रहा है, सो यू कैन गो against that person, against that institution in the court. So this was your class for today, students. I hope you like the class. So what you will be doing today, you will be writing about the fundamental rights. Okay, so thank you students again for attending my this class.